It is 2nd November 2025. We have discussed the theory on collision, and now we are going to solve questions from the past paper sheet. And the first question on the screen, it is from March 2023, paper 22, question number 4. The question is, there are two blocks. One of them is X, the other one is Y, and they are moving with different momentum. This is not their velocities. This is their momentum. They are moving in opposite direction. This is the situation before collision, and this is the situation after collision. Okay, what is the question? The question is, the block X has initial kinetic energy 0.30 joule, and they are asking calculate the mass of the block X. अच्छा बेटा, we have a formula in which momentum and kinetic energy are connected. तो रक्षिंदा, क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला आता है जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बेटा दोनों को कनेक्ट करता हो? डू यू नो एनी? हाँ हाँ, जी जी, जिसमें, जी जी, ठीक है। लेकिन जो बात मैंने पूछी ना वो बात आप समझ नहीं पाई, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था। सुनो बेटा, रक्षिंदा बेटा कॉपी कीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें रक्षिंदा ने बताया हाफ एम वी स्क्वायर। आपने सही फॉर्मूला बताया, ठीक है बेटा। बट वी हैव another formula in A level physics in which kinetic energy and momentum are connected to each other. In this formula, kinetic energy and velocity are connected. But I am asking a formula in which momentum and kinetic energy are connected. ठीक है बेटा? तो हम उसके लिए क्या करते हैं? तो this derivation they ask in exam. Derivation बेटा ये है कि if you multiply and divide by m, ठीक है, जब कभी हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं बेटा रक्षिंदा, तो हम अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। तो व्हाट इज एक्स्ट्रा वर्क? सर एक्स्ट्रा वर्क इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद एम। इट इज एन एक्स्ट्रा वर्क, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद एम, ठीक है। और जब आपने ये एक्स्ट्रा वर्क कर लिया तो इट बिकम्स 1/2m, एंड दिस m it becomes m square, and this m square with v square, it becomes momentum, and you can make whole square of mv. And beta Rakshitna, this is the formula which connects kinetic energy with momentum. You know momentum is mass into velocity. So kinetic energy and momentum are connected with each other by this formula. तो बेटा अपनी फॉर्मूला शीट के अंदर बेटा ये फॉर्मूला भी ऐड कर लीजिए बेटा रक्षिंदा। दिस फॉर्मूला कनेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी विद मोमेंटम। और एग्जाम में वो ये ड्राइव करने के लिए क्वेश्चन आता है। आगे जाओगे तो ये डेरिवेशन में नजर आ जाएगा जो हमने अभी कर लिया, ठीक है जी। एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी, सर वी आर गिवन मोमेंटम, वी आर गिवन काइनेटिक एनर्जी, and we have to calculate mass. So now I am going to use this formula. As we have to calculate mass, so I should interchange the position of mass with kinetic energy. So mass is equal to 1/2 kinetic energy with p square. We have to calculate mass, so I have made mass as a subject. And now I am putting the values. 1/2 kinetic energy. Sir, kinetic energy is given 0.3. Kinetic energy is given 0.3. Then p square. Sir, p square is momentum, and momentum is also given at the top of the diagram. It is 0.37 with square. But Rakshindra, can you calculate by calculator what is the mass of the block X? Zero point 0.2. Okay. This is the mass of the block.
Okay, this is the mass of the block. And now the next part of the question, determine the magnitude of momentum of block Y after the collision. Okay, we have to calculate momentum of block Y. Okay, we are going to solve. Sir, अच्छा if I write here तो मुझे ऊपर नीचे scroll करने में दिक्कत होगी. तो क्वेश्चन बेटा ये वाला है, but I am solving on the top. The question is we have to calculate the momentum of this. अच्छा जी, you know law of conservation of momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Before collision, the momentum is 0.37. The total momentum before collision is 0.65. लेकिन बेटा काम की बात देखिएगा रशिदा, this object is moving towards right hand side, so this is positive momentum, okay, and this object is moving towards left hand side, so its momentum is negative. ठीक है, तो मोमेंटम की साइन मैंने पहले ही बता दी थी, राइट हैंड इट इज कंसीडर्ड नेगेटिव, लेफ्ट हैंड इट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, इज इक्वल टू it is moving towards left. Sir, if it is moving towards left, then it is also in minus 0.13. It is also moving towards left, and it is, we have to calculate, it is momentum of y. तो ब्रदर इसको सॉल्व करके आप मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है. जी, ये माइनस है, उधर आगे प्लस हो जाएगा बेटा. 0.1. It is the momentum of block y. Okay, and now there are 0.5 आ रहा है. अच्छा ऐसे जिसका जो आ रहा है वो लिख ले, लेकिन मुझे इसकी जरूरत भी है नेक्स्ट पार्ट में, ये भी मसला है. तो शुड आई सॉल्व माई सेल्फ. 0.15 आ रहा है. चलें 0.15 आ रहा है. ठीक है बेटा, 0.15 आ रहा है. इट इज द मोमेंटम. ठीक. अच्छा जी, उसके बाद एक और बात कह रहे हैं ब्लॉक एक्स exert a force of 7.7 Newton on block Y during the collision. The question is calculate the time that the blocks are in contact with each other. ठीक है जी. अच्छा आपको पता है कि force is equal to rate of change of momentum. Force is equals to rate of change of momentum. We have to calculate time. So make time as a subject first. टाइम कैलकुलेट करना है तो हमें टाइम को सब्जेक्ट बना लेना चाहिए. तो टाइम इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स. चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स. अब देखो बेटा, फोर्स की वैल्यू तो सिंपल गिवन है, इट इज 7.7. इट इज 7.7. ठीक. मोमेंटम की वैल्यूज हमें नहीं पता कि मोमेंटम का चेंज कितना है. ठीक है जनाब, मोमेंटम का चेंज कितना है. अभी अभी आपने ब्लॉक वाई का मोमेंटम निकाला है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फोर्स लग भी वाई पे रही है, तो मैंने सोचा वाई का मोमेंटम का चेंज निकाले. तो देखो बेटा, वाई का फाइनल मोमेंटम है 0.15. ठीक है, और इसका मोमेंटम पहले था 0.65. ठीक है जी, एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देयर डायरेक्शन आर नॉट इन अपोजिट. तो अगर मुझे इनका चेंज निकालना है
तो बेटा 0.65 और 0.15 का डिफरेंस सर सीधा सीधा बनेगा 0.50। ठीक है, अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाती ना तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि डायरेक्शन जब रिवर्स हो जाती है तो मैंने बताया ना कि हमें एक एडिशनल माइनस भी लगाना पड़ जाता है। ठीक है जी। पर राइट नाउ आपने क्या करा, सीधा सीधा दोनों का डिफरेंस ले लिया। आपने सीधा सीधा दोनों का डिफरेंस ले लिया, और जब आपने डिफरेंस ले लिया तो ये आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम। सर अब चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया ना, इट इज 0.50। So I'm writing here 0.50. This is the change of momentum. This is the change of momentum. This is the force. And divide these two number and give me the answer. 0.065 second. ठीक है ना, it is the time. It is the time. So in this question we have completed the whole question. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें एंगल बनना है इसको हम लोग कहते हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो इसकी भी बारी आएगी, बट लेटर ऑन, अभी नहीं कर सकते। साइन थीटा कॉस थीटा पता नहीं क्या कुछ इसमें आ जाएगा। तो पहले भी हम लोग कर रहे हैं मोमेंटम या कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है, सॉरी, इन वन डायमेंशन, कि खाली एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रही है ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू डायमेंशन के अंदर हम आगे चलेंगे जब एंगल भी आने लगेगा। अच्छा जी, नाउ इट इज अनदर क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डिफाइन मोमेंटम, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये तो मैं नहीं करा रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा ग्राफ वाला है, अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन को भी अभी आपके साथ नहीं कर सकता मैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन को भी अभी हम लोग नहीं कर सकते। ग्राफ के बगैर अभी सीधे सीधे सवाल को हम लोग करना चाह रहे हैं, और सीधे सीधे सवाल में हम चलें ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है तो जरा सुनिए। और बेटा मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, और सारे क्वेश्चन की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है रक्षिता। ठीक है बेटा, तो कुछ भी आपको चाहिए होगा तो आपको हर चीज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। क्वेश्चन का ये है कि एक बॉल को थ्रो कर दिया है वर्टिकली डाउनवर्ड। यूजुअली काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं एंड वी कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, बट इन दिस क्वेश्चन द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, हाइट 1.5 मीटर है, बॉल हिट द ग्राउंड करती है 8.7 से। क्वेश्चन है कैलकुलेट यू। यू आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब, इन दिस क्वेश्चन नो टाइम इज गिवन, कोई टाइम गिवन नहीं है। डायरेक्शन आप हमें बता सकते हैं काइनेमेटिक्स में वी हैव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हिच इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ बेटा रक्षिता आप हमें बता सकती हैं कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें टाइम की कोई बात ना हो रही हो, तो फिर हम कौन सी इक्वेशन बेटा रक्षिता लगाते हैं। v माइनस यू तो बेटा कोई इक्वेशन नहीं है। नहीं नहीं, अभी जिससे पूछ रहे हैं बेटा, ये रक्षिंदर शायद हमारी पहली क्लास है ना, तो मैं किसी भी बच्चे को पढ़ाता हूँ तो पहले इवेल्युएट कर लेते हैं ना बच्चा कैसा है, फिर उसको हम क्लास में लेके चल रहे होते हैं। अभी जैसे वानिया है, वानिया को भी जब मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी तो वानिया मैंने आपको क्लास में नहीं बुलाया था ना, मैंने कहा था भाई पहले अलग से पढ़ो, जब पक्का हो जाए, बेस हो जाए, फिर क्लास में आइएगा। वानिया ऐसे ही है बेटा। हाँ, तो कोई भी नया बच्चा आता है ना, जैसे रक्षिंदर का भी आज पहला दिन है, आलियान का भी आज पहला दिन है, हम इनको पहले थोड़ा सा देख लें कि इनको क्या आता है। पता चले हम इतनी हाई फाई बातें कर रहे हैं और इनको समझ में ही नहीं आ रही है। अब बेटा रक्षिंदा आपको याद आ रहा है कुछ कि कौन सी इक्वेशन लगानी है बेटा। हाँ बोले बोले। अच्छा चले आप लिख रहे हैं, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, याद आ गया तो बताएं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही आपने कह दिया। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा आपने कह दिया। ठीक है बेटा, माइंड नहीं कीजिएगा, पहला दिन होता है, हम टीचर तो बेटा देख रहा होता है ना बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा हल्का होता है तो हम थोड़ा स्लो करके पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चा पढ़ने में तेज होता है तो और थोड़ा हाई फाई करके पढ़ा रहे होते हैं। तो अभी ऑनलाइन क्लास के अंदर बच्चा तो सामने बैठा नहीं है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को पहले समझ लें कि उसका माइंड कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाना चाहिए ना। तो अभी हम आपको थोड़ा सा इवेल्युएट कर रहे हैं। अच्छा बेटा आलियान आप भी क्लास में हैं हमारे साथ, आलियान, तो आपको भी मैं तंग कर सकता हूँ थोड़े सवाल करके।
यार इवेल्युएट तो ऐसे ही होता है ना यार, ऐसे ही तो पता चलता है कि तुम पढ़ने में कैसे हो। फिर जैसे होगे फिर उसी लिहाज से फिर हम प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो अब आलियान को भी तंग करूंगा मैं सवाल पूछ पूछ के, ठीक है। आलियान बेटा रेडी रहना। अच्छा जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू है, ठीक है। अच्छा बेटा, जो इनिशियल स्पीड होती है ना इट इज यू, जो फाइनल स्पीड होती है इट इज वी। तो v is 8.7, initial velocity, sir initial velocity we have to calculate to, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मींस इट इज फ्री फॉल मोशन, एंड इन फ्री फॉल मोशन एक्सेलरेशन इज 9.8, ठीक है जनाब। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फ्री फॉल मोशन एंड एक्सेलरेशन इज 9.8, एंड द हाइट फॉलन इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस एंड इट इज 1.5, ठीक है जनाब। अब तो बड़ा सीधा सीधा अलजबरा है, और इस अलजबरा को आप अप्लाई करेंगे और यू निकाल लेंगे। तो किसी बच्चे ने निकाल लिया तो बेटा हमें बता दे। रेयान यार तुम बता दो कितनी आ जाएगी वेलोसिटी रेयान। 8.7 स्क्वायर, अगर आप लोग बताने में टाइम लगाएंगे तो हम कैलकुलेटर खोल लेंगे, और कैलकुलेटर कितना बोल रहे हैं बेटा, बोलो 6.8, 6.8, ठीक है जी। आप हमें बता रहे हैं 6.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नहीं तो हम कैलकुलेटर से भी आपको करके दिखा सकते हैं। अच्छा जी, इट इज 6.8 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, उसके बाद जब ये बॉल जमीन को हिट करती है तो इस पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें। भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ऐसा जब बॉल जमीन को हिट करेगी तो बॉल exert a force on ground, ठीक है जनाब। जब बॉल हिट करती है ग्राउंड को तो बॉल exert करती है फोर्स ऑन ग्राउंड, ठीक है जनाब। इट इज एक्शन, द ग्राउंड, द ग्राउंड exert equal and opposite direction force which is obviously reaction। तो कोई खास मुश्किल बात नहीं है, एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आपने वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा इसके अंदर स्टेट कर देना। अब जो असली सवाल है बेटा वो ये वाला है। अभी असली सवाल क्या है, तो इसलिए असली सवाल के अंदर हम आलियान बेटा एक बात अभी अभी हमने क्लास के शुरू में समझाई है, वही बात आपसे पूछने जा रहे हैं आलियान, अभी भी क्लास में समझाइए ये वाली बात। ये बताइए जब जमीन को बेटा बॉल हिट कर रही है 8.7 से, 8.7 से जमीन को उसने हिट किया, और हिट करने के बाद जब बॉल जमीन से ऊपर आ रही है तो उसकी स्पीड हो गई है 5.4, ठीक है जनाब। जमीन को हिट कर रही थी 8.7 से और ऊपर आ रही है 5.4 से। आलियान हमें बताओ वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, 8.7 और 5.4 दोनों का चेंज कितना है आलियान। हाँ बताएं बताएं आलियान। मुझे क्या पता, जब भी तो मैं आपको फंसा रहा हूँ इस सवाल में। आप कह रहे हैं -3, यानी आपने 8.7 में से 5.4 को माइनस कर दिया ऐसे ही। चलो उसको माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ पूछना ही चाह रहा हूँ इन दोनों को माइनस करेंगे प्लस करेंगे, चलो इतनी सी बात बता दो। चेंज निकालना है, माइनस करेंगे बस, ठीक है ना। बस बस ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलती कर गए आप, ठीक है ना। मैंने क्लास में अभी शुरू में पढ़ाया था कि जब कभी लफ्ज होगा ना रिबाउंड, रिबाउंड बिल्कुल शुरू में पढ़ाया था आलियान बेटा, रिबाउंड। तो रिबाउंड कभी भी होगा ना तो चेंज निकालने के लिए सर दोनों को प्लस करा देते हैं, दोनों को प्लस करा देते हैं रिबाउंड में, ठीक है जी। यही तो चक्कर है फिजिक्स में यार, रिबाउंड का लफ्ज आएगा, की वर्ड है रिबाउंड, तो दोनों प्लस होंगे। प्लस कर लें, 7 + 4 11, 8 + 5 13, 13 और 1 14। तो जनाब चेंज है 14.1 का वेलोसिटी का चेंज, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम।
तो सर चेंज इन मोमेंटम होगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। सर मास है 0.059 और वेलोसिटी का चेंज प्लस करके आया है, इट इज 14.1। इट इज 14.1। ठीक है, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करके हमें कोई बच्चा आंसर कर दे क्या आ रहा है। 0.83। इट इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और अब चेंज इन मोमेंटम भी आ गया तो वी आर गिवन कॉन्टेक्ट टाइम विद ग्राउंड। जब बॉल जमीन को हिट कर रही थी तो वो बॉल जमीन के साथ कितनी देर तक इन कांटेक्ट रही, we are given this time and now we are calculating force. You know force is rate of change of momentum. Force is rate of change of momentum. Rate means divided by time. Time is 0.091. It is the time. And change of momentum, so change of momentum is 0.83. तो मोमेंटम का चेन 0.83 डिवाइडेड बाय टाइम, ये आ जाएगी फोर्स। कोई बच्चा मुझे बताए बेटा फोर्स क्या आ रही है। 9.12। दिस इज 9.12। ठीक है जी, दिस इज 9.12। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली तो और से सुनिएगा, एक और बात आ रही है, कह रहे हैं एक और फोर्स निकालें। इस फोर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको कल दूंगा। ठीक है, कल का मतलब अगली क्लास में दूंगा क्योंकि बहुत मुश्किल बात है वो। कह रहे हैं एक और फोर्स निकालें, बॉल जमीन को हिट कर रही है। ठीक है जनाब, बॉल जमीन को हिट कर रही है, जो फोर्स अभी हमने कैलकुलेट की है। ठीक है जनाब, दिस फोर्स एक्ट ऑन द बॉल। ठीक है जनाब, एंड दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉल। ठीक है ना, ग्राउंड ऑन द बॉल। अब इसके लिए एक थोड़ी सी जरा बात समझे कि ये बताओ, अगर किसी बच्चे ने बचपने में, आपको पता है बच्चे छलांगे मारते हैं, तो सम टाइम बच्चे हरकतें कर रहे होते हैं तो सम टाइम ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगा देते हैं। जब छलांग लगाते हैं तो जाहिर सी बात है चोट लगती है। ठीक है, और जो चोट लगती है इट इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड फोर्स लगा रही होती है। याद रखिएगा, ग्राउंड की फोर्स वेट पे डिपेंड करती है, बच्चे के वेट पे डिपेंड करती है। आप नोट कीजिएगा, जो बच्चा छलांग लगा रहा है, ठीक है जनाब, अगर छोटा बच्चा छलांग लगा रहा है उसको चोट नहीं लगती, उसका वेट कम होता है। जब उसका वेट कम होता है ना, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड कम होती है। लेकिन कोई बड़ा बंदा छलांग लगा दे उतनी ऊंचाई से, तो उसका अपना वेट बहुत ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा वेट होता है ना, उसको उतनी ज्यादा चोट लगती है। ठीक है जनाब, तो इसके अंदर वेट को ऐड कर देते हैं, और वेट को ऐड करने की प्रॉपर इक्वेशन मैंने अभी बना के नहीं बताई है, वरना ये जो नए बच्चे बैठे हैं ना, ये बोलेंगे पता नहीं कितनी मुश्किल मुश्किल बातें पहले दिन ही बता रहे हैं। ठीक है जनाब, लेकिन वेट को प्लस करना, इसकी पूरी लॉजिक आपको पढ़ाऊंगा। अलबत्ता वेट है कितना, तो सर मास है 0.059। 0.059 मास इनटू ग्रेविटी, इट मेक्स वेट। तो बेटा जरा वेट को प्लस करके बताना, 9.12 में क्या बन जाएगा। 9.9.7। 9.7। 9.7। ठीक है जी, इसको प्लस करने की लॉजिक अभी समझा दूं, हिम्मत है समझने की। रक्षिंदा आपसे पूछ रहा हूँ, इसको प्लस करने की हिम्मत है, समझा दूं। है मुश्किल बात, थोड़ी सी है मुश्किल बात, जरा सुनना बेटा। ये ग्राउंड है सर, इस ग्राउंड के ऊपर ना बॉल जमीन को हिट कर रही है। जब हिट करती है ना, हिट करती है, तो वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड। ठीक, और फोर्स ऑन बॉल, फोर्स ऑन बॉल एक्ट करती है अपवर्ड। तो जो मैंने ऊपर वाला बेटा एरो बनाया है ना,
इसका नाम है फोर्स ऑन बॉल। वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, फोर्स ऑन बॉल एक्टिंग अपवर्ड, और बॉल रिबाउंड करके ऊपर जा रही है। तो जो बच्चे इस चैप्टर को शुरू से पढ़ रहे हैं तो उनको हम बार बार पढ़ाते हैं नेट फोर्स, या टर्म होती है रिजल्टेंट फोर्स। मुझे रिजल्टेंट लिखना चाहिए क्योंकि सवाल में रिजल्टेंट लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, तो सर रिजल्टेंट फोर्स में हम पढ़ते हैं कि अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस कर लें, सर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस कर लें। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा फोर्स ऑन बॉल एक्टिंग अपवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक। अब आप ये बताइए रिजल्टेंट फोर्स वी हैव कैलकुलेटेड, रिजल्टेंट फोर्स वी हैव कैलकुलेटेड, रिजल्टेंट फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज 9.12। ठीक। वेट माइनस है, माइनस का वेट सर वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का वेट। ये वेट बेटा प्लस हो गया, और ये मैंने कैलकुलेट कर ली फोर्स ऑन बॉल। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतनी लंबी कहानी पूरी बना के निकालेंगे। आपको हम याद करवाना चाह रहे हैं, और ये सवाल पेपर में बार बार आता है कि जब बॉल जमीन को हिट करेगी तो रिजल्टेंट फोर्स होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रिजल्टेंट फोर्स होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसके बाद पूछेगा बताइए फोर्स ऑन द बॉल कितनी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में वेट प्लस कर दोगे, वेट प्लस कर दोगे तो आ जाएगी एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉल, फोर्स ऑन फोर्स ऑन बॉल एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। ठीक है जी। खैर काफी मुश्किल बात बेटा मैंने बोल दी है, मुझे नहीं पता रक्षिंदा को समझ में आई नहीं आई। अच्छा बेटा और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा एक और बात आ रही है क्या, सर एक्स एक्सिस पर उन्होंने रखी है स्पीड, वाई एक्सिस के ऊपर उन्होंने रखी है टाइम, कह रहे हैं बॉल को थ्रो किया नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी तो बढ़ रही थी, वेलोसिटी तो बढ़ रही थी। ठीक है, नीचे जा रहा है वेलोसिटी बढ़ेगी। बताइए तो वेलोसिटी बढ़ती है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो सर बढ़ती हुई वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है ना फ्री फॉल मोशन में, वो ये वाला होता है। फ्री फॉल मोशन में ये वाला होता है। फ्री फॉल का मतलब अगर एयर नहीं है तो स्ट्रेट लाइन, और अगर एयर होती है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला ग्राफ बनता है। बच्चे समझते हैं टर्मिनल वेलोसिटी वाला ग्राफ। एयर नहीं है तो ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है जनाब। लेकिन कह रहे हैं कि बॉल ने जमीन को हिट कर दिया कैपिटल टी पर। बताइए जैसे ही कैपिटल टी के ऊपर वो हिट करेगा तो कह रहे हैं स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन स्पीड फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इज टू कैपिटल टी। तो कैपिटल टी पर पहुंचकर जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम। लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ। क्या गलती कर रहे हैं सर, इस क्वेश्चन में बॉल को ड्रॉप नहीं किया है, बॉल की स्पीड पहले से थी, बॉल की स्पीड पहले से थी। कितनी स्पीड थी पहले से, सर 6.8 पहले से स्पीड थी, 6.8 पहले से थी, 8.7 तक जाना है। तो ग्राफ जो शुरू होगा ना बेटा वो ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, 6.8 से शुरू होगा, 6.8 से शुरू होगा, और इसको खत्म कीजिएगा 8.7 8.7 पर। ठीक है ना। 8.7 पर इट विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी, और इस मैक्सिमम वेलोसिटी का टाइम लिखिएगा कैपिटल टी। तो ग्राफ ओरिजिन से अगर आपने शुरू किया तो आपको जो नंबर मिलने वाला था वो आउट हो जाएगा। तो ग्राफ विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 6.8, और 6.8 से ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और 8.7 तक ये ऊपर गया है। ठीक। अच्छा फिर नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पढ़ाते वक्त जरा टीचर एक्स्ट्रा कारकर्दगी दिखा रहा होता है, बच्चे को बता रहा होता है देखो ये ऐसा हुआ ये ऐसा। ठीक है। एग्जाम में जस्ट आपने ग्राफ बनाया। ठीक है बेटा। अच्छा एक और बात कह रहे हैं, कह रहे हैं जो अभी आपने ग्राफ बनाया है ये फ्री फॉल का है, लेकिन सचमुच की जिंदगी में तो एयर होती है, और अगर एयर होती है तो अब बताएं अगर एयर होगी तो उस ग्राफ की शक्ल बोल नहीं रहा कि कैसे बनेगी। ठीक है। लेकिन कह रहे हैं ग्रेडियंट के ऊपर कमेंट्री करें, तो मेरा मशवरा तो ये है कि ग्राफ बना ले तो समझाना आसान हो जाता है, बगैर ग्राफ के तो समझाना और मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। अगर एयर होगी तो क्या होगा, सर अगर एयर होगी ना तो हमने बचपन में टॉपिक पढ़ा हुआ है आईजीसीएसई में टर्मिनल वेलोसिटी,
और टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ सारे बच्चों को याद होगा, ऐसा होता है। और जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाती है तो फिर ऐसा हो जाता है। ठीक। अब आप खुद देखिए, मेरी टर्म में इसको मैं यूं पढ़ाता हूँ कि अगर ग्राफ बेंड हो रहा है हॉरिजेंटली, अगर ग्राफ बेंड हो रहा है हॉरिजेंटली, तो इसका मतलब होता है कि इसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, इसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जनाब। तो यही कह रहे हैं कि अगर एयर हो तो ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ की एक्सप्लेनेशन दें क्या होगी। ठीक है ना। व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस है, तो इसका आंसर ये होगा, इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। तो बेटा मैं यूं कहूंगा कि ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन होता है, एंड इट इज डिक्रीजिंग इन एयर। अगर एयर है तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा होता है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होता है। और एक्सेलरेशन डिक्रीज होते 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 जब जीरो हो जाता है तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी मिलती है। सर टर्मिनल वेलोसिटी मिलती ही जब है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, ग्रेडियंट जीरो हो जाए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। एयर की प्रेजेंस में एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होता है तो ग्रेडियंट भी डिक्रीज हो रहा होता है। और ग्रेडियंट डिक्रीज होते 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 फाइनली ग्रेडियंट जीरो हो जाता है। ग्रेडियंट डिक्रीज होते होते फाइनली जीरो हो जाता है। सर बेटा ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। और अगर हिम्मत है तो एक और सवाल करते हैं, और हिम्मत करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में टाइम इतना नहीं बचा हुआ। तो देखिए जनाब एक और क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर 2020। क्वेश्चन, डिफाइन फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन ए लेवल की फिजिक्स में सिर्फ ये वाली चलेगी भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ए लेवल्स में फोर्स की डेफिनेशन सिर्फ ये चलेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है जनाब, ये तो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद बेटा क्वेश्चन फिर वही वाला है कि एक बॉल आई जमीन को हिट कर रही है। जब हिट करती है तो पहले वेलोसिटी 3.8 है, बाद में वेलोसिटी 1.7 हो गई। क्वेश्चन है, कैलकुलेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम, हाफ एम। ये इनिशियल वेलोसिटी इसको बोल दीजिए जो कि ज्यादा है, और ये फाइनल वेलोसिटी है जो कि कम है। तो हाफ एम कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटीज के स्क्वायर का डिफरेंस ले लेंगे। तो बेटा हाफ ये रहा, मास है 0.062, मास है 0.062, ये हाफ मास हो गया बेटा। वेलोसिटीज में आ जाइए, तो वेलोसिटी पहले 3.8 है और बाद में 1.7 है। कैलकुलेटर चलाओगे तो बेटा आंसर आ जाएगा, छोड़ दें, छोड़ दें। फिर क्वेश्चन है कैलकुलेट। हाँ बोले बोले। हाँ बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती ही नहीं है, इसलिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन मोमेंटम में देखिए फिर वही वाली बात आ गई जो अभी आपने कही ना, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ यू आर कैलकुलेटिंग चेंज ऑफ मोमेंटम, इट मीन्स यू नीड चेंज ऑफ वेलोसिटी। मास इज 0.062, बट वेलोसिटी चेंज विल बी 3.8 प्लस 1.7। सॉल्व करेंगे तो बेटा मोमेंटम का चेंज आ जाएगा। ठीक है ना। मोमेंटम का चेंज आ जाएगा, जल्दी से बता दें व्हाट इज मोमेंटम चेंज। 0.34। और जब बेटा मोमेंटम का चेंज आ गया तो you are given time of contact with the ground, yes it is 0.081, and now they are asking calculate resultant force। तो मैंने बताया resultant force होती है rate of change of momentum, और change of momentum है 0.34, टाइम है 0.081। वन ये बेटा आंसर कीजिए। 4.2 ये तो दिया हुआ है, ठीक है जी 4.2।
अच्छा, अब एक बात को जो मैं अभी सिखा चुका हूँ, आई होप कि अब आप रट्टा मारेंगे, कोई फार्मूला लगाने नहीं बैठ जाएगा। सवाल फिर वही है, फोर्स ऑन द बॉल, फोर्स ऑन द ग्राउंड। जब कभी ये बोले ना तो देखो रिजल्टेंट फोर्स तो आ चुकी होती है बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में एम जी प्लस कर देना, और जो रिजल्ट है इधर आया हुआ वो यहाँ पे लिख देना दोबारा। दोनों में फर्क क्या है भाई, ये है फोर्स ऑन बॉल और ये है फोर्स ऑन ग्राउंड। दोनों बराबर होती हैं, पर दोनों में एम जी प्लस करा देते हैं, दोनों में एम जी प्लस करा देते हैं। रिजल्टेंट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में एम जी प्लस करा देते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, बड़ा रिकॉर्डिंग भी बंद करूंगा।